will discuss with the students of Taraz. Our topic is a constitution is the living document. In our earlier chapter we have discussed regarding the general introduction of the chapter constitution as the living document. Then what are the subject matters, what are the subjects which are covered in this chapter. We have discussed two parts, that is what are the organs, what are the agencies which can take part in the amendments of the constitution under the Act 268, and then we have discussed it how amendments are made in our constitutions, what are the methods by which the amendments are made. But as far as the provisions in our constitution are concerned, that there are provisions for amendment of the constitution which come under Article 368 in part number 20 and part number 20. But despite of various provisions of amendment, means those methods are criticized by the lodge. यहाँ पे अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो तो कर रहे हैं, बट देयर आर सो मेनी डिफेक्ट्स एंड दोज डिफेक्ट्स आर क्रिटिसाइज्ड बाय different methods by which there is a provision of amendment by which the amendments in the constitution are made, but there are also some methods which are criticized by the others. जो discussion में रहा है, which are the controversial, on which there are discussions, there is a criticism. So we can today we can study, we can discuss what are the criticism of the amendment of constitution. हमारा आईन में जो इसमें तरमीम लाई जाती है, वो तरमीम तो जो है वो लाई जाती है अंडर रूल, बट डिस्पाइट ऑफ दैट, इसके बावजूद उन पे जो है वो तरह तरह के उंगलियां नुक्ता चीनी जो है की जाती है, और बहुत सारे मेथड्स जो है वो कंट्रोवर्शियल रहे हैं, उनके बहस उन पे हो रहा है। मीन्स हम बात करेंगे कि नंबर 1 जो है, स्टेट्स हैव नो इनिशिएटिव, स्टेट्स हैव नो initiatives in amending the constitution. Means जो है initiative in amending the constitution. जहाँ तक सवाल स्टेट्स का है, क्योंकि these इंडिया जो है, आवर कंट्री इज क्लासिफाइड इनटू डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स. सो स्टेट्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर कंट्री. मीन्स हम मान लें कि ये जो पूरा इंडिया है, इसकी डिफरेंट स्टेट्स है, और पूरी स्टेट्स मिला के इंडिया को एक पूरा इंडिया बनता है. देन जहाँ तक अमेंडमेंट का सवाल है, तो अमेंडमेंट के लिए जो है द पावर्स, जिसमें जो पावर्स है, दे लाई ऑन द इन द पार्लियामेंट जो है वो इसके लिए सिर्फ पार्लियामेंट ही रिस्पॉन्सिबल है, पार्लियामेंट ही अथोराइज्ड है. वहाँ पे प्रोविजन, देयर इज अ प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट if the amendments in the constitution are made,
Parliament of India is empowered for that amendment. Means सिर्फ पार्लियामेंट ही हमारी करती है, नो डाउट. The signature of presidents are necessary. Only then that bill which is passed in the parliament can become act when that bill is properly signed by the President of India. Or there are some other conditions where we can say that whenever any amendment in the constitution is necessary, suppose there is no state assemblies at that very time, the governor of the state is empowered to give recommendations, but they are not authorized to make amendments. Means they can take part, or we can talk of this special amendment in which the 50% of the states must vote, वो जो है must recommend for the amendments. Only then that amendments can be made, which cannot come under the subject of 368. कहीं पे ऐसी आपको अगर amendment लाने की ज़रूरत है जो हमारे आर्टिकल 368 और पार्ट नंबर 20 में नहीं है, वहाँ पे जो रेक्टिफिकेशन जो है वो स्टेट्स का 50% होना चाहिए. लेकिन वो ऐसा करते हैं, बट डिस्पाइट ऑफ दैट द स्टेट्स को जो है वो खुद ही इसमें तरमीम नहीं ला सकते. सिर्फ जो है वो पार्लियामेंट ही जो है इस पे करती है. पावर ऑफ इनिशिएटिंग एन अमेंडमेंट लाइज ओनली विद द पार्लियामेंट. द स्टेट हैव not been given any such power of initiation. मतलब उसका आगाज करती कहीं पावर जो ऐसी है, दी स्टेट्स आर नो पावर इसमें कि वो कहीं इसका इनिशिएटिव ले, कहीं इसका वो जो है इसकी शुरुआत करें. मीन्स स्टेट को ऐसा नहीं है. सो सच पावर फॉर अमेंडिंग beside the approval of the state is not essential. Means कहीं पे कोई जो है स्टेट का ज़रूरी हो लाजमी नहीं है किसी भी अमेंडमेंट में. अमेंडमेंट विदाउट द इनिशिएटिव ऑफ द स्टेट जो है वो अमेंडमेंट की जाती है. इट मीन्स कि दिस इज क्रिटिसाइज्ड जो है ये क्रिटिसाइज है. दिस इज ए कंट्रोवर्शियल पॉइंट दैट स्टेट्स आर नॉट given power to take part to make any amendment in the constitution. Then next जो है no time limit fixed for the rectification of the state. No time limits fixed for no time limit fixed for rectification of state. तो दूसरा क्रिटिसिज्म ये है कि नो टाइम लिमिट फिक्स्ड फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ द स्टेट. मीन्स इसमें जो है द प्रोसीजर सफर फ्रॉम another defect, that no time limit is fixed in the constitution for the approval of the state. कि वहाँ पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, चाहे जितना टाइम लगे, जितनी उसे टाइम लगने की ज़रूरत है वो लगा सकते हैं. मीन्स दे मे टेक एज मच एज टाइम दे लाइक. वो चाहे जितना टाइम लगाए. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे आइन के अंदर ऐसा नहीं है कि जब भी मीन्स वो जो है किसी टाइम कोई फिक्स्ड टाइम हो उसके अंदर कोई काम करना है. लेकिन देयर इज नो सच प्रोविजन. इसलिए ये भी एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है. ये भी एक तनकीद हो रही है इस पे कि ये जो एक टाइम जो है फिक्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है. इसमें हमारे आइन के अंदर ऐसा संविधान नहीं है, ऐसा नहीं है कि मीन्स कहीं
किसी स्टेट को किसी काम को करने के लिए कोई टाइम दिया गया हो कि विद इन स्टेपुलेटेड टाइम, विद इन पार्टिकुलर टाइम जितना जो है उसके लिए फिक्स किया गया है कि वो टाइम लगा कि किसी एक्टिविटी को फुलफिल करे। ऐसा प्रोविज़न जो है हमारे संविधान, हमारे आइन के अंदर नहीं है। ये एक दूसरा जो है वो फॉल्ट है, एक दूसरा फॉल्ट है हमारे अमेंडमेंट प्रोसेस में कि इस स्टेट्स के लिए कोई इनिशिएटिव जो है, कोई टाइम फिक्स नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। देन तीसरा पार्ट जो है डिसएग्रीमेंट ऑफ टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। डिसएग्रीमेंट बिटवीन two houses of parliament। तो फिर कभी कभार ऐसा हो जाता है ओवर ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है, मींस एग्री, कभी कभार दोनों हाउसेज जो हैं यहाँ पे ये जो बाइकैमरल सिस्टम इन आवर इंडिया, देयर इज अ बाइकैमरल सिस्टम इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इट इज यूनिकैमरल, बट एज फार एज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न देयर इज बाइकैमरल। यहाँ पे टू हाउसेज हैं, यहाँ पे लोकसभा है, राज्यसभा है। Sometimes there is no methods of resolving the difference between the two houses regarding the bill concerning the constitution amendment. Suppose वहाँ पे जो है कभी कभार ऐसा हो जाता है कि both the houses, that is the Lok Sabha and Rajya Sabha cannot be agreed. There is a difference. They are not agreed to make a constitutional amendment. तो then what happens? कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो दोनों राजी नहीं है, मीन्स एक हाउस में जो है वो बिल पास हो जाता है और दूसरे हाउस में बिल पास नहीं होता है। तो मीन्स वो जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो है कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो देयर इज नो प्रोविजन कि उसको रिजॉल्व किया जाए। नो डाउट प्रेसिडेंट के पास एक पावर है दैट ही कैन कॉल द एक सिंगल मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज, इन दोनों को बुला के एक ही बेंच पे बुलाता है और वो ऐसा कर लेता है। बट इन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो प्रोविजन, ऐसा इनके अंदर नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखे आईन में हो कि दोनों हाउसेज को ऐसा करना, ऐसा नहीं है। बट द पावर लाइज विद द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है उस समय एक वो ज्वाइंट सिटिंग करता है, उनका ज्वाइंट इजलास करता है और उसमें इसको डिसाइड कर लेता है। लेकिन ये जो है दिस पॉइंट जो है अगेन इट इज ए कंट्रोवर्शियल, ये ऐसा नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। जब इसमें जो है बट द criticism of the constitution will be considered as ordinary bill, जो है इसको ordinary bill किया जाए, and the joint sitting of both the house will be called to resolve the difference regarding the bill। इसमें फिर जो है प्रेसिडेंट कभी न कभार अगर ऐसा हो गया कि एक बिल के अंदर कंट्रोवर्सी पैदा हो गई, एक बिल जो है वो कंट्रोवर्शियल बन गई, वो एक हाउस में जो है वो इसे पास कर लेते हैं विद द सिंपल मेजॉरिटी और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, लेकिन दूसरे हाउस में ऐसा नहीं होता है, देन इट बिकम कंट्रोवर्शियल एंड देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देन यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो इनकी सिटिंग, इनको बुलाता है और इनका इजलास करवाता है, इनका सिंगल सिटिंग, एक ही इनका ज्वाइंट सिटिंग एक ही जगह पे बैठ के इनको बुलाया जाता है और इनके वो जो इसको रिजॉल्व किया जाता है
रिगार्डिंग द बिल। सो ये भी कंट्रोवर्शियल है कि अगर डिफेंस हो गया तो प्रोविजन वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है कि वो ऐसा रिजॉल्व कर ले। देन assent of the present over constitutional amendment. Then fourth come assent of the president. President over the constitutional amendments. तो चौथा पार्ट है कि नथिंग अबाउट द वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। मींस प्रेसिडेंट जो है वो एपेक्स हेड है, वो मुल्क का सबसे बड़ा है, लेकिन उसके पास जो है वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मींस उसके पास फुल पावर है, लेकिन यहाँ पे पावरफुल जो है वो जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। खालिस प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर्स है ऑफ द प्रेसिडेंट इज गिवन इन द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। जो इसके स्पेशल जो वीटो पावर इसके है तो वो ऐसे ही है, अमेंडमेंट में उनका कोई भी इस्तेमाल होने वाला नहीं होता है। मींस अगेन दिस इज क्रिटिसिज्म। अगेन ये जो है इस पे क्रिटिसिज्म है कि अगर उसके पास वीटो पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, वो कुछ भी कर सकता है, देन व्हाई नॉट विद द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर इतना होने के बावजूद वो जो है जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो, व्हाई द प्रेसिडेंट कैन नॉट यूज इट्स पावर। ये भी जो कहीं न कहीं इसका क्रिटिसिज्म में आता है। और जो है इट आल्सो नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट amendment which is approved by the state requires assent to the president or not। और ये भी नहीं लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो है वो प्रेसिडेंट से साइन हो, सिग्नेचर हो या नहीं, वो नहीं लिखा गया है, इसलिए अगेन इट इज ए क्रिटिसिज्म। देन देयर आर सम नोटेबल प्रोविजंस भी हैं वहाँ पे जो क्रिटिसिज्म है जिन पे। देयर आर सर्टेन प्रोविजन इन द बिल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 253 जो है इसमें ऐसे है जहाँ स्पेशल है ऑफ द नेचर। इस किस्म के जो हैं वो प्रोविजंस हैं, हम नोटेबल प्रोविजंस हैं एंड दोज प्रोविजंस आर इन द आर्टिकल 253। आर्टिकल 253 में ऐसे प्रोविजंस हैं, ऐसे सब नोटेबल प्रोविजंस हैं जिनके ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म आता है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, जब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के लिए मींस इसके लिए भी जो है वो क्रिटिसिज्म है। अकॉर्डिंग टू दी जैन जेनिंग में जो है एक फिलासफर है, एक पॉलिटिशियन एक थे जो डील करते थे। इट इज ए क्वाइट obvious that there are clauses which do not need to protect this constitution। वहाँ पे ऐसे भी clauses हैं जो इसको प्रोटेक्ट नहीं करते। इट मीन्स वंस अगेन ये जो है इस पे क्रिटिसिज्म आता है इन ये कॉन्स्टिट्यूशन की कि जो मेथड्स ऑफ अमेंडमेंट से इस पे अगेन क्रिटिसिज्म आ जाता है। तो ये जो थे इन जनरल जो है जो एरिया ऑफ द क्रिटिसिज्म थे ओवर द मेथड्स ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। सो मुझे लगता है कि आपने इनको जो है वो अंडरस्टैंड किया होगा, इनको समझा हुआ होगा। सो बाय दिस वी हैव completed the criticism of the methods of the amendment of the constitution। तो मुझे लगता है कि आप इससे समझ गए होंगे। It is enough for today। बहुत लंबा हो गया तो इट मीन्स हम जो है आगे नेक्स्ट पार्ट में इसको
अगेन दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। टिल देन थैंक्स।